Okay, students, let us start today's lecture. On last lecture, we were discussing how to obtain the epsilon and Fa from a given regular expression. Okay, so we have seen for it the Kleen's theorem and its proof. So we have seen what is the Kleen theorem and how we can prove this. So if a theoretical paper comes, so proof of the Kleen theorems may also come. So you should practice that as well. Otherwise, normally a numerical problem will come. Then we have taken one example of the language a plus b asterisk a, and we applied Kleen's theorem to find the Fa corresponding to this particular given language. So we have obtained the corresponding epsilon and Fa to this corresponding to this particular language, and then as it was in epsilon and Fa, just to be sure that we are getting the correct result, we have converted it to the corresponding DFA. So for this we have used our already discussed methodology to convert an epsilon and Fa to a DFA. So we have found the corresponding DFA, and then we have minimized the DFA which we have obtained from our epsilon and Fa, and then we have seen that we got the same design which we were expecting for this particular language a plus b asterisk a. So in this manner we have verified that the result obtained by the Kleen's theorem is correct. So we have got the correct epsilon and Fa as we have converted it to the DFA and minimized, and we got the expected design. So it was all which we have discussed on the last lecture. I hope there will be no problem. Can we move forward, class? Okay, so I am assuming that there is no problem in last lecture. Our today's agenda is to discuss finite automaton with output capabilities. We will be discussing the two basic models for which are having the output capabilities, Moore machine and Millet machine. We will discuss their formal definitions and some design examples. So let us quickly move to finite automata with output capabilities. Number one question is why? Why we need output capabilities in our finite automatons? If you remember our initial classes, we started our discussion of FA with the motivation to design a mathematical model of a general purpose computer. So this was our basic aim. When we started this subject, our basic aim was to develop or to design a mathematical model for a general purpose computer. So in that line, we started our discussion of FAs. So as I have told you at that time as well, that FAs, we assume that these are the machines, though we are designing these things on pen paper, but these designs can be converted into the real machines if we are using the physical resources. So we started this discussion with the motivation to design mathematical model for a general purpose computer. And at that time we said that our input strings basically represents the program and the input data. किसी भी सिस्टम, किसी भी मशीन को आप क्या देते हैं? You give some instruction, you write your programs, you give your programs and input data. So it reads the instructions in the program and process the input data, and accordingly it gives you some result. So we can assume that reading letters from the input string is analogous to executing the instructions. हम FAs में क्या कर रहे हैं? On FAs, how we are executing our input strings? We give an input strings to the FAs, and this input string, each FA read letter by letter starting from left to right. So we say that when we read a letter from the input string, it is analogous of executing instruction in that. Okay, and it causes change of the state because of that instruction which is embedded into that input letter. Our machine changes its state in response to that. So in this manner we are executing our instructions over the machine. So this was just a recap of our FAs, what our FAs were doing. So if we look explicitly, our FAs has done so far only to recognize a language. So what they do?
they recognize certain words and they reject the others. So the set of word which is recognized by the FA is called the language defined by that particular FA. So the only explicit task our FA has done so far is to recognize a language. If we look at the general purpose computers, so often our computers are useful for various other functions as well. They can perform the calculations and they can convey the results. So in this lecture, we are stressing over this conveying of result, means the output. So we will be focusing on output, and we will expand our notion of machine to investigate two different models of FAs with output capabilities, and these models are Moore machine and Millet machines, as we have discussed in our agenda. So now we are quick. I hope you have understood that why we need output capabilities, because we are slowly moving towards the mathematical model of a general purpose computer. So one part we have done through the FAs, that is the recognition of the language. So something it will accept and something it will reject. And now we are going to add the output capabilities also to our machines through these two models, Moore machine model and Millet machine model. Now, if we talk about Moore machine, okay, what a Moore machine is. A Moore machine is collection of following things. These things are a finite set of states, capital Q. Okay, जैसा कि हमारा normal FA में होता था कि it is a finite set of states, so some states will be there in this particular set. Okay, out of this set, one state Q0 will be designated as the start state. Is it? जैसा FA में होता था बिल्कुल वैसे ही हमने define किया. Now an alphabet of finite numbers of लेटर्स फॉर्मिंग द इनपुट स्ट्रिंग, यानी कि एक इनपुट अल्फाबेट जिसको हम सिग्मा कहते हैं, जैसे हमारे एफए के केस में एक इनपुट अल्फाबेट होता था, हमारी इस मूरे मशीन में भी एक इनपुट अल्फाबेट होगा जिसके सिंबल्स की हेल्प से हम इनपुट स्ट्रिंग्स फॉर्म कर सकते हैं. मींस व्हाट इनपुट वी कैन गिव टू द मशीन दैट विल बी फॉर्म्ड थ्रू दिस अल्फाबेट. Now, number 3 is an alphabet, another alphabet of possible output letters. चूंकि हमारे नॉर्मल जो एफएस थे जो हमने अब तक डिस्कस किए उसमें आउटपुट कैपेबिलिटीज नहीं थी, तो उसमें कोई भी आउटपुट अल्फाबेट नहीं था. यहाँ हमारे पास क्या है? देयर मे बी द आउटपुट अल्फाबेट ऑल्सो. इज इट? So we are calling this alphabet as gamma. Gamma is equal to suppose XYZ. So it will also contain certain symbols, certain letters, certain characters, which can be printed as the output, Now, one very important thing here is that this sigma and gamma may contain something common as well. Means the symbol which we are using for input, those symbols can also be used for output. Okay, तो हमारी इच्छा है, हमारी मर्जी है, हम चाहें तो different output symbols use कर सकते हैं और चाहें तो same आउटपुट सिंबल्स यूज कर सकते हैं जो हमने इनपुट के लिए यूज किया. देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन. सो यानी कि आउटपुट सिंबल्स का सेट और इनपुट सिंबल्स का सेट ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई किसी में हम कुछ भी रख सकते हैं. इज इट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार जो हमारे इनपुट सिंबल से वर्ड बन रहे हैं वही हमारे आउटपुट सिंबल से भी बन सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस gamma can use the same input symbols which are also present in our sigma, in our input alphabet. So the second alphabet is an alphabet of possible output letters. Then fourth thing is a transition function delta. It is the similar transition function which we are having in our FEs, which tell us for each state and each input symbol what state is reached next. यानी कि अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टेट पे हूँ, एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल रीड कर रहा हूँ, तो मैं नई किस स्टेट पे पहुंचूंगा, दिस ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा विल टेल मी. सो दिस ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा विल बी फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा टू Q. मीन्स इट विल टेक टू इनपुट्स, वन स्टेट एंड इनपुट सिंबल्स. किस स्टेट में आप हैं करंटली और क्या इनपुट सिंबल आप रीड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या किस नई स्टेट में आप पहुंचेंगे, दैट विल बी द रिजल्ट. सो इट्स रिजल्ट विल बी ए स्टेट. सो दैट विल बी द न्यू स्टेट टू विच यू विल रीच. ओके, नाउ फिफ्थ थिंग इज एन आउटपुट फंक्शन. सो दिस इज ए न्यू इंट्रोडक्शन हियर. आउटपुट फंक्शन लैम्डा that tell us what letter of output alphabet is printed by each state as it is entered. Okay, यानी कि जैसे ही आप किसी भी स्टेट में एंटर करेंगे वैसे ही उस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट होगा जिसको आप
प्रिंट करेंगे. So that's why this transition function lambda is from Q to this gamma. Q to this gamma means it will take as input a state कि किस स्टेट में आप एंटर कर रहे हैं और उस स्टेट के बेसिस पे आपको ये बताएगा कि क्या आउटपुट लेटर या क्या आउटपुट सिंबल आपको प्रिंट करना है. इज इट? सो दैट्स व्हाई दिस ट्रांजिशन फंक्शन लैम्डा इज फ्रॉम Q to this gamma. Okay, so in short, if we call in compact way or in some books, Moore machine is also represented by 6 tuples, and those 6 tuples are Q, sigma, gamma, delta, lambda and Q0. So आप देखें ये वही सारी चीजें जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की हैं, तो चाहे आप थ्योरेटिकली इस तरह से डेफिनेशन लिख दीजिए या 6 टपल के फॉर्म में डेफिनेशन दे दीजिए. अगेन यहाँ Q हमारा सेट ऑफ स्टेट्स है, सिग्मा हमारा सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स है, गामा हमारा सेट ऑफ आउटपुट अल्फाबेट्स है, डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है जो कि हमें स्टेट का ट्रांजिशन बताएगा, लैम्डा हमारा जो है आउटपुट फंक्शन है जो हमें बताएगा कि हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट हमें प्रिंट करना है, एंड Q0 इज अवर start state. Okay, so here you can see one thing, one difference from normal FA is that there is no final state. There is no final state. Is it? So we will later on discuss what is the repercussion of these. So इसमें चूंकि कोई final state नहीं है तो इसका मतलब ये words को accept और reject नहीं करेगा. Is it? So it will not define a language. It will do something else. So जैसा कि हमने बताया था कि Moore machine और Millet machine, these are the models having the output capabilities. So corresponding to each input, they will generate some output. Okay. So they will not recognize a language. Rather, corresponding to each input, they will generate an output. I hope this definition is clear. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we will move to an example of it. Class, is there any doubt? No, sir. Okay, so I should move to the example. Okay, before going to the example, so we should discuss some of the properties of the Moore machine. So these properties are, number one, how we'll process our input strings over these machines. So FA में हम कैसे process करते थे? FA क्या करता था, हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको लेटर बाय लेटर रीड करता था. तो हमारे पास यहाँ इनपुट स्ट्रिंग होता था, तो ये इनपुट को हम किसको प्रोवाइड कर देते थे? FA को प्रोवाइड कर देते थे. तो इनपुट स्ट्रिंग लेटर बाय लेटर ये FA रीड करता था और अल्टीमेटली किसी एक स्टेट में रेस्ट करता था. तो जो भी इसकी रेस्ट स्टेट होती थी, अगर वो रेस्ट स्टेट हमारी एक नॉन फाइनल स्टेट होती तो हमारा स्ट्रिंग रिजेक्ट होता था, और रेस्ट स्टेट अगर फाइनल होती थी तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता था. तो इस तरह से लैंग्वेज डिफाइन करता था. अब चूंकि जैसा भी हमने पीछे डिस्कस किया कि हमारी Moore मशीन में देयर इज नो फाइनल स्टेट. Okay, so there is no final state in our Moore machine. So that's why Moore machine does not define a language. Rather, it generates an output string corresponding to every input string. So what it does, for every input string, it creates an output string. So in this manner, it will give you the output. And processing of the input string is terminated when the last input letter is read and the corresponding output letter is printed. So this is the functioning of the Moore machine. So how we'll process an input string over the Moore machine? We will present the input string to the Moore machine. Moore machine will read it लेटर बाय लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि FA के केस में करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करेगा. बट अंतर क्या होगा कि वहां ये केवल स्टेट चेंज करता था, यहाँ ये स्टेट भी चेंज करेगा और स्टेट चेंज करने के साथ साथ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. सो कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी इनपुट इट विल प्रोड्यूस एन आउटपुट. ओके, सो दैट विल बी द रिजल्ट of the processing of a particular input string. Now let us take one example. So I am taking one example. In this example, I am taking a sigma. Sigma is suppose AB. So there are two input alphabets AB. Okay, and suppose my output alphabet, this gamma, is equal to say 0 1. So these are our output symbols and these are our input symbols. जैसे मैंने आपको कहा कि input और output symbol अगर problem कहती है तो same भी हो सकते हैं. Means I can also use A and B here as the output symbol. There is no restriction on it. Okay, तो output symbol input symbol से different भी हो सकते हैं और same भी हो सकते हैं. So this is sigma.
This is gamma. Okay, and suppose my set of state Q contains some state, say Q0, Q1, Q2, and Q3. So there are 4 states, suppose. And out of these 4 states, this Q0 is my start state. Start state. Okay, so this is my start state. Now I have to represent the Moore machine on the basis of these quantities. Okay, so this Moore machine I can represent in the form of a transition table. तो जैसे हम अपने FA को रिप्रेजेंट करते थे, 2 मेथड थे हमारे पास, एक ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन था और दूसरा हमारे पास क्या रिप्रेजेंटेशन था, ट्रांजिशन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ए ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन, ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन. सो ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा. जैसे नॉर्मल एफए के केस में आपका क्या होता था, आपके पास यहाँ एक स्टेट होती थी और दूसरी साइड आप इनपुट अल्फाबेट लेते थे. सो इधर की तरफ आप स्टेट्स लिखते थे, इधर की तरफ आप इनपुट अल्फाबेट लिखते थे. अगर आपके पास 2 इनपुट अल्फाबेट थे तो आप 2 कॉलम बनाते थे, सपोज ए और बी. यहाँ आप स्टेट लिखते थे. सो देन आप एंट्रीज यहाँ कैसे करते थे कि Q0 स्टेट में अगर आप ए रीड कर रहे हैं, सो वेयर यू शुड रीच, सपोज Q1 यू हैव टू रीच. Q0 स्टेट में अगर आप बी रीड कर रहे हैं, सपोज यू हैव टू रीच टू Q2. सो इन दिस मैनर यू आर फॉर्मिंग द ट्रांजिशन टेबल फॉर FA. Now we are going to discuss the transition table for Moore machine. Moore machine. So its format will be old state, old state. So this will be one column, and then there will be an output column. Output column, output by old state. Output by old state. So there is one column which will tell you the output. So basically these 2 entries in the transition table represents the output function. So here you will write the states. Suppose there your states are Q0, Q1, Q2 and Q3. So these are your states. These are your states. And here you will enter कि अगर इन states में मैं enter करता हूँ तो output मेरा क्या आएगा. Suppose Q0 में enter करता हूँ तो output is 1, so I will make an entry of 1 here. अगर Q1 में enter करता हूँ, suppose my output is 0, so 0 entry is here. Q2 में suppose it is 0, Q3 में suppose it is 1. So basically this portion of your transition table or of your table represents the output function. So it is representing the output function. So corresponding to each state, what output will be printed, so we are mentioning here. Okay, and Q0 is our start state, so we'll mark it as the start state. Now here we have to represent the transition function for the states. So we'll write here new state. New state, say after A and after B. We were having 2 input symbols A and B. So अगर मैं Q0 में A रीड करूं तो कहां जाऊंगा, Q0 में B रीड करूं तो कहां जाऊंगा. तो अगर मैं इस पोर्शन को देखूं अपने ट्रांजिशन टेबल के, सो इट इज नथिंग, इट इज बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा. और अगर इस वाले पोर्शन को देखूं, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट फंक्शन लैम्डा. इज इट? सो यहाँ पे मैं इसी तरह से एंट्री कर लूंगा. सो अगर मैं एंट्रीज यहाँ पे ऐसे करता हूँ, सपोज इट इज Q1, Q3 and suppose it is Q3, Q1, and suppose the next is Q0, Q3, Q0, Q3, and suppose next is Q3, Q2, Q3 and Q2. So this table perfectly defines a Moore machine. It is combining both the output function lambda and the transition function delta. Is it? So this is a perfectly defined Moore machine. I hope it is clear, class. If you have any doubt, you can ask. Class.
Any doubt? No, sir. Clear. Okay. Okay. So now I will be making a pictorial representation of it. So that is called the transition diagram representation. So transition diagram. Again for this Moore machine. Okay. ट्रांजिशन डायग्राम में क्या है, अब देखिए जो हमारी स्टेट है, स्टेट तो रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, स्टेट में सिंपल स्टेट लिखने के बजाय उसके साथ साथ आउटपुट, क्योंकि हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट है। सो आई विल बी मेकिंग ए एंट्री समथिंग लाइक Q0/1. Okay, because in the Q0 state I have to print a 1. I will make the second entry Q1/0, because in the Q1 state whenever I enter I have to print a 0. So in this manner I will make my state. So I am making my states Q0/1. So this is my 1 state and this is my start state. Q0 was my start state, so that's why I will mark it as the start state. So Q0/1, it simply means that whenever I will be entering into this state Q0, I will be printing a 1. Okay, then Q1/0. So this is my second state. Then my third state is suppose Q2/0. And then my fourth state is Q3/1. Is it? So इस तरह से मेरी ये स्टेट्स बन गई। अब मैं इसके ट्रांजिशंस ड्रॉ करता हूँ। ट्रांजिशंस किससे बनेंगे, देखिए ये मैंने किससे बनाया, आउटपुट फंक्शन से बनाया। Q0/1, Q1/0, Q2/0, Q3/1। अब ट्रांजिशन फंक्शन मैं किससे बनाऊंगा, जैसे कि FA के केस में बनाते हैं। Q0 on A is going to Q1. So Q0 on A is going to Q1. Okay, and whenever I am entering into Q1 I will print a 0. On B I am moving to Q3. On B I am moving to Q3. Then similarly from Q1 on A it is Q3. On A it is Q3. On B it is Q1 itself. So it is a self loop. From Q2 on A is Q0. On B it is Q3. On B it is Q3. From Q3 on A it is Q3 itself. On B it is Q2. On B it is Q2. So it is the transition diagram representation of a Moore machine. So if you look at, it is only different from normal FA just in one thing, that is each state is having an entry for its corresponding output. Rest everything is same as of FA. And one more difference is that it doesn't have any final state. Is it? So I hope this example is clear. Now let us see how we can process an input string over it and what will be the output. So an input string, suppose an input I am giving to it, input suppose say I say AB will be an input to this particular machine. So it will generate an output. So first thing is you will enter into the start state, that is the Q0. So आप अपनी functioning कहाँ से start करेंगे, Q0 से। तो उसके लिए आपको Q0 state में enter करना पड़ेगा। So whenever you will enter into a Q0 state, you will print a 1 here. You will print a 1 here. Is it? Then you will read the first symbol from the input. So in Q0 state, you are reading an A. So Q0 state on A goes to Q1 state. Is it? So you will enter into the Q1 state, and whenever you will enter into the Q1 state, you will print the corresponding output character. So it is the 0. Q1 state में अगर enter करें तो क्या print करना है, 0. So I will mark a 0 here in the output. So now I am in the Q1 state. Now I have to read the next letter from the input. Next letter from the input is B. Okay. So Q1 on B, I will remain at Q1 means I will again enter into the Q1 state. So I will print one more 0 and again I am in the Q1 state. Now next input symbol I will be reading, that is the A. So Q1 on A, then I have to go to the Q3 state. So I will enter into the Q3 state and I will print a corresponding symbol, that is 1. So I will print a 1
and now I am in the Q3 state. Now I will read the next letter, which is the last letter in my input. So Q3 on B. I will move to the Q2 state, and when I will move to the Q2 state, I will print a 0. So now my processing will end. So I will end up into a Q2 state, and my last output letter, that is 0, has been printed. So last input letter has been read, and the corresponding output has been produced or has been printed. Then my processing will finish. So I will finish in the Q2 state. So in whatever state I finish, it doesn't matter. The only thing is, corresponding to this input, I am getting this particular output. If you carefully look at the length of the output, in case of Moore machine is always 1 more than the length of input. अगर देखिए यहाँ input की length 4 है, तो यहाँ output की length 5 है. इसी तरह से अगर मान लीजिए इनपुट की लेंथ 3 होती तो यहाँ आउटपुट की लेंथ 4 होती, इनपुट की लेंथ 5 होती तो आउटपुट की लेंथ 6 होती. हमेशा आउटपुट की लेंथ जो होगी वो इनपुट की लेंथ से एक ज्यादा होगी. और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द स्टार्ट स्टेट. बिकॉज आई विल ऑलवेज स्टार्ट with an start state. So whenever I will enter into the start state, the automatic symbol, which is automatic output symbol, which is present in the start state, has to be printed. Means even if your input string is epsilon, your input string is null string. So then in null string also you have to enter, to process this null string, you have to enter into the start state. So you will enter into the start state and you will print a 1. So corresponding to null, 1 will be printed. Okay, so that's why length of the output in case of Moore machine will always be 1 more than the length of the input. Is it clear, class? सर एक्सक्यूज मी. यस सर ये मूरे मशीन के जो ट्रांजिशन टेबल में हमने आउटपुट फंक्शंस बनाए हैं, सर ये आउटपुट बाय ओल्ड स्टेट, सर ये क्वेश्चन में गिवन होता है या फिर कुछ तरीका होता है इनको निकालने का? नहीं, ये तो देखिए अभी फिलहाल तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मशीन मुझे दी हुई थी. इज इट? सो इस मशीन पे कैसे कैसे वर्क होगा मैंने केवल ये बताया. अभी ये मशीन डिजाइन कैसे होंगी इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. इज इट? सो ये आउटपुट क्या आएंगे ये हमें ही डिसाइड करना है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम इन अवर हैंड. ओके, सो ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसको अभी छोड़ दीजिए आप. इसके अलावा कोई और डाउट हो तो पूछिए. ओके, इज देयर एनी अदर डाउट और वी शुड मूव फॉरवर्ड? Okay, so I am moving forward. Now we'll take one example of a Moore machine design. Okay, suppose so design of Moore machine. Now we'll design a Moore machine. अब अगर आप मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले उस मशीन के लिए कोई प्रॉब्लम आपके हाथ में होनी चाहिए. ऐसा तो है नहीं मशीन वैसे ही डिजाइन कर देंगे. यू मस्ट हैव वन प्रॉब्लम इन योर हैंड. ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट आवर प्रॉब्लम इज in a long string of A's and B's. Suppose first of all we assume that our sigma is AB, and we have to count the occurrences of substring A, B. यानी मेरे पास A और B पे कोई एक लंबा सा स्ट्रिंग है. उस लंबे से स्ट्रिंग में कितनी बार मेरा सब स्ट्रिंग A अकर कर रहा है, दिस आई हैव टू काउंट. सपोज दिस इज द प्रॉब्लम इन माई हैंड. ओके, इसके लिए मुझे एक मूरे मशीन डिजाइन करनी है. ओके, अभी मैं डिजाइन नहीं कर रहा, मैं सीधे आपको मूरे मशीन बना करके बता रहा हूँ. उसके बाद पहले उसको जो है टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसको हमने कैसे डिजाइन किया है. ओके, so just look at the corresponding Moore machine. इसका solution क्या है? Q0 is suppose start state and its output printing instruction is 0. On B, I stay here. On A, I move to another state, that is Q1 state. It is also having the printing instruction 0. Okay, so on A, I move to Q1 state. Okay, now from Q1 state, if I am reading in A, I am moving to another state, say Q2, with the printing instruction 0. Okay,
एंड अगर Q1 से मेरे को B मिलता है देन आई विल मूव बैक टू दी स्टार्ट स्टेट दैट इज Q0, इज इट? अगर A मिला तो Q2 पर और B मिला तो Q0 पर। अब Q2 पे आ जाते हैं। Q2 पे यदि मेरे को A मिलता है सो आई विल स्टे हेयर, आई विल स्टे हेयर। अब मैं Q2 में ही रहूंगा और 0 ही प्रिंट करूंगा, इज इट? और अगर मेरे को B मिलता है देन आई विल मूव टू द स्टेट Q3 with printing instruction 1, with printing instruction 1, okay? So A और B Q2 से दोनों हमने निकाल लिया। अब Q3 से अगर मेरे को A मिलता है so I will move to the Q1 state, और अगर मेरे को B मिलता है then I will move to the Q0 state. So this is a Moore machine. Moore machine है कि नहीं है, सबसे पहले तो बताइए। Q0, Q1, Q2, Q3 these 4 states are there। तो Q आपके पास हो गया, ठीक है। इनपुट अल्फाबेट आपके पास A और B हो गया। आउटपुट अल्फाबेट इस केस में हमने यूज किया है से 0 1, इज इट? सो ये हमारा आउटपुट अल्फाबेट हो गया। उसके बाद हमारा ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा हमें मालूम है, हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए कहाँ पे जाना है ये हमने डिफाइन कर दिया। देखिए Q0 से B पे यहाँ रहेंगे, A पे यहाँ जाएंगे, Q1 से B पे वापस जाएंगे, A पे आगे जाएंगे, Q2 से A पर अपने आप पर रहेंगे, B पर Q3 पे जाएंगे, Q3 से A पर Q1 जाएंगे और B पे Q0 जाएंगे। सो हर स्टेट के लिए हमने ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा भी डिफाइन कर दिया है। आउटपुट फंक्शन देखिए, हर स्टेट में अगर एंटर कर रहा हूं तो क्या आउटपुट है? Q0 में 0, Q1 में 0, Q2 में 0 और Q3 में 1। सो यानी कि आउटपुट फंक्शन लैम्डा भी मैंने डिफाइन कर दिया। सो एवरीथिंग विच वाज रिक्वायर्ड फॉर ए मूरे मशीन आई हैव डिफाइंड। सो इट इज अ परफेक्टली डिफाइंड मूरे मशीन। अब क्वेश्चन ये कि मूरे मशीन जो मेरी प्रॉब्लम थी, काउंट द अकरेंसेस ऑफ द सब स्ट्रिंग्स A B इन ए लॉन्ग सीक्वेंस, इट इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। ओके, सो इसके लिए मैं चेक करता हूं। मैं सबसे पहले यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ एक इनपुट लिख लेता हूँ और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लिख लेता हूं, ठीक है? इज इट? कुछ लाइंस बना लेता हूं। ओके, यहां मैं अपना इनपुट ले लेता हूं। सपोज मेरा इनपुट ट्रिपल ए बी, सो ट्रिपल ए बी, ए बी बी, ए बी बी, ए एंड बी बी बी। सपोज दिस इज माई इनपुट स्ट्रिंग। ओके, अब ये इनपुट स्ट्रिंग में इस पे प्रोसेस करता हूं। देखिए इस इनपुट स्ट्रिंग में कहीं ए बी आ रहे होंगे कुछ। क्या मुझे आप काउंट करके बता सकते हैं इसके अंदर कितने ए बी आ रहे हैं? जस्ट काउंट एंड टेल मी हाउ मेनी ए बीज आर देयर। 2। एक तो ये आ रहा है आपके पास, इज इट? और दूसरा ए बी, एक यहाँ आ रहा है, इज इट? इसके अलावा और कहीं ए बी नहीं आ रहा आपके पास, इज इट? सो इन दो जगहों पे आपके पास, यानी कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को इनपुट में दूं तो इससे मुझे आउटपुट मिलना चाहिए कि मेरे पास 2 ए बी हैं। सो हाउ दिस मशीन इज काउंटिंग इट, लेट अस रन दिस इनपुट स्ट्रिंग ओवर दिस मशीन। सबसे पहले देखिए आप Q0 स्टेटमेंट एंटर करेंगे, Q0 स्टेटमेंट एंटर करेंगे। जैसे Q0 स्टेटमेंट एंटर करेंगे एक 0 प्रिंट करेंगे। ओके, सो आपने एक 0 प्रिंट कर दिया। अब मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा कॉलम इसलिए बनाया है क्योंकि जो आपका ऑटोमेटिक जो है आउटपुट की स्टार्टिंग है वो यहाँ से हो जाए। उसके बाद हर लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या प्रिंट कर रहे हैं दैट वी विल लुक एट। ओके, अब Q0 स्टेट में है, आप देखिए यहाँ Q0 स्टेट में है, Q0 स्टेट में है और क्या रीड कर रहे हैं? एक ए रीड कर रहे हैं। ओके, एक ए रीड किया, बल्कि इसको यहाँ लिखने के बजाय मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं Q0 स्टेट में हूँ और एक ए रीड कर रहा हूँ। अगर ए रीड कर रहा हूँ तो मैं Q0 स्टेट में ए रीड करके कहाँ जाऊँगा? Q1। ओके, और Q1 में जाऊँगा तो क्या प्रिंट करूँगा? 0। सो मैं 0 प्रिंट किया और Q1 स्टेट में चला गया, ठीक? उसके बाद देखिए अब Q1 स्टेट में मैं क्या रीड कर रहा हूँ? ए रीड कर रहा हूँ। सो Q1 स्टेट में ए, कहाँ जाऊँगा? Q2 पे जाऊँगा और एक 0 प्रिंट करूँगा। तो यहाँ तो मैंने 0 प्रिंट करा और Q2 स्टेट में चला गया, इज इट? अब Q2 स्टेट में मेरे को फिर ए मिल रहा है। तो Q2 स्टेट में मेरे को फिर ए मिला तो मैं कहाँ रहा? Q2 स्टेट पे रहा। अब प्रिंट क्या किया? चूंकि Q2 स्टेट में 0 प्रिंट करना तो 0 प्रिंट किया। अब मैं Q2 स्टेट में और क्या रीड कर रहा हूँ? एक B रीड कर रहा हूँ। सो Q2 स्टेट में B मुझे कहाँ ले जाएगा? Q3 पे ले जाएगा।
सो आई रीच टू दी स्टेट Q3 और प्रिंट क्या करूंगा, एक 1 प्रिंट करूंगा, क्योंकि Q3 में एंटर करने में मुझे क्या प्रिंट करना था, 1 प्रिंट करना था। तो Q3 में एंटर किया, 1 प्रिंट किया और Q3 स्टेट में चला गया। इज इट? सो आप देखिए पहला AAB मैंने सक्सेसफुली मार्क कर लिया। देखिए ओनली दिस एंट्री इज 1, only this entry is 1, so I have successfully marked the occurrence of AAB। अब उसका देखिए Q3 स्टेट में मेरे को A मिल रहा है, Q3 में A कहाँ जाना चाहिए मुझे, Q1 पे। इज इट? Q1 पे। सो आई विल गो टू द Q1 स्टेट और Q1 स्टेट में जाऊंगा तो प्रिंट क्या करूंगा, 0। अब Q1 स्टेट में मेरे को क्या मिल रहा है, B। Q1 स्टेट में B मिला, सो Q1 में B यानी कि कहाँ जाऊंगा, Q0 पे जाऊंगा। सो मैं कहाँ गया, Q0 पे गया और मैंने क्या प्रिंट किया, 0 प्रिंट किया। अब Q0 में मेरे को B मिल रहा है, Q0 में B यानी कि Q0 पे ही रहा, सो Q0 पे ही रहा मैं और एक 0 प्रिंट किया। Q0 में A, अब Q0 में A देखिए कहाँ आ रहा है, Q1। सो आप Q1 पे आ गए और आपने क्या प्रिंट किया, एक 0, क्योंकि Q1 में आपको 0 ही प्रिंट करना था। अब Q1 में A, सो Q1 में A कहाँ ले जाएगा आपको, Q2 पे। ओके, सो आप Q2 पे आ गए, बट स्टिल यू हैव प्रिंटेड ए 0, क्योंकि Q2 में भी आपको 0 ही प्रिंट करना था। अब Q2 में आपको B मिला, Q2 में B, आप कहाँ गए, Q3 पे गए। आप कहाँ गए, आप गए Q3 पर गए और आपने क्या प्रिंट किया, एक 1, क्योंकि Q3 पे जाते ही आपको क्या प्रिंट करना था, 1। तो आप देखिए जहां आपका A B एंड हुआ वहीं आपने क्या प्रिंट किया, एक 1 प्रिंट किया। तो यानी कि सेकंड अकरेंस ऑफ AAB आल्सो यू हैव मार्क्ड सक्सेसफुली। नाउ Q3 में आपको क्या मिला, B मिला। Q3 में B आपको कहाँ ले गया, Q0 पे। सो आप कहाँ चले गए, Q0 पे चले गए और Q0 पे गए तो आपने क्या प्रिंट किया, 0 प्रिंट किया। अब Q0 पे B, तो आप Q0 पे ही रहे और आपने क्या प्रिंट किया, 0। अब चूंकि लास्ट इनपुट लेटर आपका रीड हो गया और उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट करेक्टर प्रिंट हो गया, तो आपकी प्रोसेसिंग है जो है फिनिश हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, केवल आपका जो आउटपुट आया है उसमें आपको जस्ट एक काउंट कर लेना, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस हैज बीन मार्क्ड। 2 नंबर ऑफ वंस हैज बीन मार्क्ड, इसका मतलब इसमें A B के कितने अकरेंसेस हैं, 2 अकरेंसेस हैं। दिस इज माई रिजल्ट। सो दिस मशीन इज वर्किंग परफेक्टली। सो इस मशीन को बना करके मैंने आपको केवल ये दिखाने की कोशिश की है कि आपका मूरे मशीन किस तरह से यूजफुल है, कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है इस मूरे मशीन को। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? सर यस सर Q3 पे 1 आउटपुट क्यों मिला था? Q3 ये अभी डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए फिलहाल ये मशीन मैंने बनाई है, मशीन परफेक्टली वर्क कर रही है। इट इज अ मूरे मशीन। मूरे मशीन का यूज समझ में आया कि हम जो है मूरे मशीन को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट अवर लैंग्वेज, अबाउट अवर वर्ड्स। सो वी कैन मेक मूरे मशीन्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि अब आप देखिए मेरे पास एक इनपुट था, उस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक आउटपुट निकाला। मेरा आंसर, मुझे क्या फाइंड करना था, काउंट द अकरेंसेस ऑफ द सबस्ट्रिंग AAB। सो थ्रू माय आउटपुट आई कैन फाइंड हाउ मेनी occurrences of the substring AAB are there in the input string. So input के corresponding output यानी कि answer to my question I was able to do through this Moore machine. So this Moore machine has the output capabilities. Is it clear or not? Just इट इज क्लियर? अगर ये क्लियर है तो फिर हम डिजाइन पे जाते हैं कि हमने इसको डिजाइन कैसे किया। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं। आई एम इरेजिंग समथिंग। आप देखिए मैंने क्या इरेज किया है, जितने भी आउटपुट थे वो इरेज कर दिए। मैंने क्या इरेज किया, जितने भी आउटपुट थे वो इरेज कर दिए, यानी कि हर स्टेट से आउटपुट इरेज कर दिए। और साथ में क्या किया, Q3 को एक फाइनल स्टेट बना दिया। अब ये FA देख करके आप मुझे बता सकते हैं ये FA कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। नाउ इट इज अ नॉर्मल FA। अब देखिए इसमें से आउटपुट फंक्शन मैंने खत्म कर दिया और फाइनल स्टेट ऐड कर दी, तो ये एक FA बन गया। ये FA किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट टेल मी। Sir, string containing AAB as a substring. All the strings that contain AAB as substring. नो इट इज नॉट। थोड़ा सा और करेक्ट के करीब हैं आप, थोड़ा सा और जो है सही बताना है। all strings ending with AAB. Ending with. Oh, sorry, ending Okay. with. So this is an FA. This is an FA corresponding to FA for all words ending
with substring a b, यानी कि जो भी स्ट्रिंग ए बी से एंड करेगा वो इस पे सक्सेसफुल होगा। आप जस्ट चेक कर लीजिए, सिंगल ए बी आप यहां आकर के एंड करोगे, सक्सेसफुल है। इज इट? सपोज ए बी ए, सो ए बी ए आपको कहां ले जाएगा? यहाँ Q1 पे। आप Q1 पे एंड करोगे, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए बी तो है इसके अंदर, मगर एंड ए बी से नहीं हो रहा। इज इट क्लियर है? सो इट इज एन FA which is accepting all the words which are ending with a b. Is it clear or not, class? Is it clear or not? Yes sir. Okay, FA क्लियर हो गया। अब आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली ये FA बनाया और क्या किया, हर नॉन फाइनल स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक जीरो प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन अटैच की, और जो भी मेरी फाइनल स्टेट थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन 1 अटैच की, और उसके बाद यहां से मैंने क्या किया, फाइनल स्टेट को इरेज कर दिया। सो ये वापस मेरा क्या बन गया, वही मूरे मशीन बन गई जिसके थ्रू मैंने ये सारा का सारा फंक्शन किया था। इज इट और नॉट? क्लियर है कि नहीं? यस। ओके, अब आप देखिए प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए। मेरी प्रॉब्लम क्या थी, काउंट दी अकरेंसेस ऑफ दी सबस्ट्रिंग ए बी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ए बी से एंड होने वाले स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने वाला FA बनाया, उसमें जो भी फाइनल स्टेट थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन दी, और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट थी उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग 0 प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन दी। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जब भी मेरे स्ट्रिंग में ए बी आएगा, सो आई शुड बी एट द फाइनल स्टेट। इज इट और नॉट? कि जब भी मेरे स्ट्रिंग में ए बी आएगा, जहां भी ए बी आकर के बी पे फिनिश होगा, जैसे सपोज माय स्ट्रिंग इज ए बी, सो ए पे मैं Q1 आऊंगा, अगले ए पे मैं Q2 आऊंगा, बी पे मैं Q3 आ जाऊंगा, तो यानी कि यहाँ पे मैं Q3 पे आऊंगा। सो जहां पे भी मैं Q3 पे था, यानी फाइनल स्टेट पे था, मैंने एक 1 मार्क कर दिया। इसके बाद आगे जो कुछ भी आए, ए सपोज ए बी सपोज ये, तो अब इस ए से मैं कहाँ गया, Q1 पे गया, अगले ए से Q2 पे आया, उससे अगले ए पे फिर Q2 पे रहा, फिर बी। ओके, सो बी से मैं Q3 पे आया, यानी कि इस ए बी के बाद मैं वापस यहाँ जब ये बी मिलेगा मेरे को, मैं वापस फाइनल स्टेट पे हूँ। सो अगेन आई एम मार्किंग 1। सो एवरी टाइम, क्योंकि अगर मेरा स्ट्रिंग केवल इतना ही होता तो सक्सेसफुल होता, इसी तरह से अगर मेरा स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक होता तो सक्सेसफुल होता। इज इट? इसी तरह से अब इसमें आगे सपोज बी और है, ठीक है, तो मैंने जहां जहां पे भी ए बी पे एंड हो रहा था वहां मैंने 1 मार्क किया, यानी कि अगर मेरा स्ट्रिंग या तो इतना होता या इतना होता तो सक्सेसफुल होता। डबल भी अगर आ गया साथ में तो ये अनसक्सेसफुल होगा, बट जहां जहां भी ये सक्सेसफुल हो रहा था वहां मैंने क्या मार्क कर लिया, 1 मार्क कर लिया। सो इन दिस मैनर आई कैन काउंट द नंबर ऑफ ABs present in this particular string. I hope now you have understood what methodology we have used. In general, अगर हमारे पास कोई भी लैंग्वेज L है और उसका FA है जो उसको एक्सेप्ट करता है, अगर हम एक प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन 0 ऐड करें सारी की सारी नॉन फाइनल स्टेट्स पे, मींस ऐड प्रिंटिंग 0 to all non-final state, all non-final states. And similarly, if we add printing 1 to all final states, अगर हम ऐसा करते हैं, so then once in any output, अब अगर हम उस पर जो है एक इनपुट स्ट्रिंग रन करा रहे हैं तो जितने भी 1 आएंगे हमारे आउटपुट सीक्वेंस में, they will mark the end position of all the sub strings of the input, जो कि अगर L के वर्ड्स थे तो एक्सेप्ट होते। तो हम इस तरह से इसको जो है यूज कर सकते हैं। So this is an example, just an example how we can design a Moore machine. Is it clear or not, class? नंबर 1 यूज समझ में आया कि हम किस तरह से आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 2 कि हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। वी विल नॉट स्ट्रेस मच ओवर द डिजाइन ऑफ मूरे मशीन, क्योंकि नॉर्मली मूरे मशीन का डिजाइन आपके जो है एग्जामिनेशन में जो है नहीं आएगा। मिले मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजाइन, तो उसके डिजाइन पे हम ज्यादा स्ट्रेस करेंगे। जस्ट इट इज टू गिव यू एन आइडिया हाउ वी कैन डिजाइन ए मूरे मशीन। इज इट क्लियर और नॉट, क्लास? अगर ये क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं। Yes, sir. Okay, so again 2 simple things.
मूरे मशीन डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी वर्ड, डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी वर्ड, क्योंकि इसमें कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है। ये केवल हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगी, एंड दैट आउटपुट यू कैन एनालाइज दैट आउटपुट टू आंसर द क्वेश्चंस इन योर प्रॉब्लम। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। Now we are moving to the next machine, that is the Millet machine. Okay. Millet machine में क्या है, अगेन इसकी हम डेफिनेशन देखें तो ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कि जैसा कि हमारा मूरे मशीन में एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट था, वैसे यहाँ भी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होगा, जिसमें कि Q0 एक स्टार्ट स्टेट होगी। इसी तरह से एक अल्फाबेट इनपुट स्ट्रिंग्स का होगा, इनपुट अल्फाबेट होगा सिग्मा, ऐसे ही एक आउटपुट अल्फाबेट होगा गामा, जैसे कि मूरे मशीन में था, बिल्कुल सिमिलर है मूरे मशीन की तरह। अब एक ट्रांजिशन फंक्शन होगा जो कि हमें बताएगा हर स्टेट और हर इनपुट सिंबल के लिए कि हमें नई किस स्टेट में पहुंचना है। अगेन द ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा टू Q, सो इट इज आल्सो सिमिलर लाइक मूरे मशीन। नाउ कम ऑन द नंबर 5, an output function lambda that tells us for each state and each input symbol what letter from the output alphabet is printed। पिछली बार क्या था, पिछली बार जैसे ही हम किसी स्टेट में एंटर कर रहे थे, उस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट को हम प्रिंट कर रहे थे। अब की बार हम स्टेट पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारा आउटपुट स्टेट और इनपुट सिंबल दोनों पर डिपेंडेंट है। पिछली बार मूरे मशीन में क्या था कि आउटपुट वाज डिपेंडेंट ओनली ऑन state which you were entering. Okay, so that's why there your transition function delta was from Q to gamma, is it? What transition function delta क्या था? Q to gamma, it means corresponding to the state what output is to be printed, that we were saying. So this was in case of Moore machine. Now in case of Millet machine it is again Q cross sigma to gamma, यानी कि क्या आउटपुट प्रिंट होगा ये ना केवल स्टेट पर डिपेंड करता है, बल्कि उस स्टेट में मैं किस इनपुट सिंबल को रीड कर रहा हूं उस पर डिपेंड करेगा। मींस एक तरह से ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा और गामा दोनों ही किस पर डिपेंडेंट है, किस स्टेट में है और क्या इनपुट सिंबल रीड कर रहे हैं, इस पर डिपेंडेंट है। सो डिफरेंस समझ में आया मिले और मूरे मशीन में? बाकी सब कुछ सेम है, केवल डिफरेंस कहाँ है, आउटपुट फंक्शन में डिफरेंस है। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? यस सर। Okay, so again Millet machine is also represented by 6 tuple, जैसे कि मूरे मशीन होती है वही Q सिग्मा गामा डेल्टा लैम्डा Q0, बस यहाँ पे अंतर कितना है कि यहाँ पे ये लैम्डा जो है ये बदला हुआ है, इट इज चेंज्ड, बाकी सब कुछ मूरे मशीन जैसा ही है। सो द ओनली डिफरेंस फ्रॉम मूरे मशीन इज इन द आउटपुट फंक्शन लैम्डा। So it is clear. Now we'll take an example for it. First of all, I will use a transition table. I will make a transition table for a Moore machine, क्योंकि transition table का format इस Millet machine में Moore machine से different होगा. So I will look at the transition table for Millet machine. Millet machine. अब इसमें अगेन मैं एक जल्दी से ट्रांजिशन टेबल बनाता हूं। यहां मेरा आएगा ओल्ड स्टेट, इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, जिसे कहूंगा मैं आफ्टर ए एंड आफ्टर बी। This I have made because I have assumed that my sigma is AB. मेरे इनपुट अल्फाबेट में 2 सिंबल्स हैं AB। अगर इनपुट अल्फाबेट में 3 सिंबल होते तो मैं 3 कॉलम बनाता है। यहाँ पे एक सपोज C और होता तो एक और लाइन खींच करके आफ्टर C करके एक कॉलम और बनाता। इज इट? तो इस तरह से मैं सबसे पहले इस टेबल को बना रहा हूँ। अब इस आफ्टर A वाले में मैं क्या करूंगा, इसे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। इसी तरह से आफ्टर B वाले को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा और इनमें क्या क्या लिखूंगा, न्यू स्टेट एंड आउटपुट। सिमिलरली यहां भी क्या लिखूंगा, न्यू स्टेट एंड आउटपुट। अगर मेरा तीसरा कॉलम C वाला और होता तो वहां भी वापस उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करता और क्या लिखता, न्यू स्टेट एंड आउटपुट। सो दिस इज द
format of the transition table for a Mealy machine. So you can see that it is different from the Moore machine. अब old state suppose यहाँ पे मेरे पास state है वही Q0, Q1, Q2, Q3 मान लेता हूँ Q0, Q1, Q2 and Q3. Suppose ये 4 state है मेरे पास और इसमें अब मैं फंक्शन मान लेता हूँ Q1, Q3, Q3 ये सारे के सारे Q3. ओके सो ये Q1 मान लेता हूँ ये Q3, Q3 एंड Q3 सपोज और आउटपुट यहाँ मान लेता हूँ 0 1 0 1 0 1 0 1 यानी कि अगर मैं इसको लाइन खींच लूँ तो थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा. इज इट? इसी तरह से यहाँ आफ्टर बी नई स्टेट अज्यूम कर लेता हूँ Q3 Q2 Q3 Q0 Q3 Q2 Q3 एंड Q0. सिमिलरली यहाँ आउटपुट है मेरे पास 0 1 1 1. सो इन दिस मैनर आई हैव डिफाइंड ए ट्रांजिशन टेबल फॉर मिले मशीन. आप देखिए ये सही कैसे है. मेरा ट्रांजिशन अगर मैं Q0 पुरानी स्टेट और आफ्टर ए नई स्टेट आफ्टर बी नई स्टेट यानी कि इस कॉलम को और इस कॉलम को इन दो कॉलम्स को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये दोनों कॉलम्स मेरा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये दोनों कॉलम्स मेरा ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं. इज इट? यानी कि किस स्टेट में हूं और किस इनपुट सिंबल पे अगर ए है तो कहां जाना है और बी है तो कहां जाना है. सो हर स्टेट के लिए मुझे ये बता रहे हैं. तो अगर ये दो कॉलम को मैं कंसीडर करूं दीज आर माय ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा. इसी तरह से अगर मैं Q0 पर हूं और A रीड कर रहा हूं तो मेरे को क्या प्रिंट करना है? 0 प्रिंट करना है. Q0 पर हूं अगर B रीड कर रहा हूं तो क्या प्रिंट करना है? 0 प्रिंट करना है. सो यानी कि अगर इन दो कॉलम्स को कहूं तो ये दो कॉलम्स मेरा क्या बता रहे हैं? ये दो फंक्शन मेरा जो है आउटपुट फंक्शन लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी कि अगर मैं Q0 में हूं A रीड कर रहा हूं तो क्या प्रिंट करना है? Q0 में हूं B रीड करना है तो क्या प्रिंट करना है? सिमिलरली सपोज Q2 स्टेट में हूं अगर A रीड करना है तो क्या प्रिंट करना है? अगर Q2 स्टेट में हूं B रीड करना है तो क्या प्रिंट करना है? यानी कि 1 प्रिंट करना है. इज इट? सो ये कॉलम्स मुझे क्या बता रहे हैं? ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा. सो यानी कि एक तरह से आपका चूंकि Q क्रॉस सिग्मा पे थे तो इसीलिए ट्रांजिशन टेबल का आपका फॉर्मेट क्या है. यानी कि जैसी आपकी नॉर्मल ट्रांजिशन टेबल थी FA की उसी में आपने क्या किया है? आउटपुट वाली ट्रांजिशन टेबल और ऐड कर दी है. आप चाहते तो दो डिफरेंट टेबल बना सकते थे जैसे कि स्टेट ओब्लिक सिग्मा ये करके आप बना देते. यहाँ पे आप लिखते A B और यहाँ आप स्टेट बना देते Q0 और यहाँ से सपोज Q1 पहुंच रहे हैं सपोज यहाँ Q3 पहुंच रहे हैं एंड सो ऑन समथिंग लाइक दिस. ये होता आपका ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा. आप एक दूसरी ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते थे जो होती है आपकी स्टेट ओब्लिक आउटपुट. इज इट? अगेन स्टेट ओब्लिक सिग्मा. इधर की तरफ तो इनपुट ही आता A और B और यहाँ आप क्या बनाते? Q0 अगर स्टेट है A पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. B पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. Q1 स्टेट है A पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. B पे भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है एंड सो ऑन समथिंग लाइक दिस. तो ये आपकी क्या हो जाती है? ये आपका ट्रांजिशन ये आपका आउटपुट फंक्शन लैम्डा हो जाता. तो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा हुआ और ये आउटपुट फंक्शन लैम्डा हुआ. तो आप देखिए दोनों एक सी टेबल बनती है आपकी. अब हमने क्या किया? इन दोनों टेबल्स को कंबाइन कर लिया है. यानी कि A पर बजाय एक सिंगल कॉलम यहाँ रखने के और एक सिंगल कॉलम यहाँ रखने के मैंने यहाँ A पर दो कॉलम रख लिए एक स्टेट के लिए और एक आउटपुट के लिए. आई होप दिस ट्रांजिशन टेबल इज क्लियर टू यू क्लास. दिस ट्रांजिशन टेबल इज क्लियर. ओके सो हमने मूरे मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल का फॉर्मेट लिया. उसमें क्या होगा? यहाँ ओल्ड स्टेट और यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन आएगा बाई ओल्ड आउटपुट आएगा बाई ओल्ड स्टेट और उसके बाद फिर आफ्टर ए आफ्टर बी नई स्टेट्स क्या होंगी उनके कॉलम्स आ जाएंगे. यहाँ पे क्या होगा? आफ्टर ए आफ्टर बी पहले आएगा उसके अंडर में न्यू स्टेट्स और आउटपुट के कॉलम्स आ जाएंगे. केवल इतना सा डिफरेंस है. सो ये हमारा ट्रांजिशन टेबल है मिले मशीन के लिए. अब अगेन इसको हम ट्रांजिशन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो मैं जल्दी से इस मशीन को कन्वर्ट कर लेता हूँ ट्रांजिशन डायग्राम में. ओके सो ये मेरी सपोज Q0 स्टेट है दैट इज द स्टार्ट स्टेट और Q1 है मेरी ये स्टेट. Q2 है सपोज मेरी ये स्टेट और Q3 है सपोज मेरी ये स्टेट. अब मैं जल्दी से इसके ट्रांजिशन बना दूँ. सो Q0 ऑन A इज गोइंग टू Q1. ऑन A इट इज गोइंग टू Q1
और साथ में आउटपुट ये क्या प्रिंट कर रहा है 0, सो आई विल राइट ओब्लिक 0। यानी कि अब मैंने क्या किया कि आउटपुट को बजाय स्टेट में लिखने की, बिकॉज नाउ आउटपुट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टेट ओनली, इट इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट एज वेल एज दी इनपुट सिंबल। सो यानी Q0 में है और A रीड कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा, सो दैट्स व्हाई ऑन दिस ट्रांजिशन आई हैव रिटन दिस आउटपुट, इज इट। सो यानी कि इसमें अंतर क्या होगा इसके ट्रांजिशन डायग्राम में, मूरे मशीन के ट्रांजिशन डायग्राम में क्या था, ये हर स्टेट के अंदर आउटपुट इंस्ट्रक्शन आ रही थी। यहाँ क्या है, हर एरो पे, हर ट्रांजिशन पे आउटपुट इंस्ट्रक्शन आएगी कि हर ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या आउटपुट प्रिंट करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? सिमिलरली आप देखिए Q0 on B, I am going to the Q3 state with the output 0. So Q0 on B, I am coming to the Q3 state with the output 0. So B oblique 0 I will be writing here. So यानी जब भी मैं Q0 से B रीड करूंगा, I will move to the Q3 state and I will print a 0. Is it? इसी तरह से Q1 से आप कर लीजिए फटाफट। Q1 on A is Q3 1. So Q1 on A is Q3 and output is 1. So Q1 on B is Q2 with the output 1. Q1 on B is to Q2 with output 1. Now Q2 on A is Q3 0. So Q2 on A is Q3 and printing 0. Q2 on B is also Q3 but printing 1. So Q3 on B is printing 1. It is going to Q3 but printing 1. Q3 on A is to Q3 itself and printing 1. So A oblique 1. So Q3 on B is Q0. Q3 on B is Q0 and printing a 1. Is it? So this transition table for Mealy machine I have converted to the transition diagram. Is it clear or not? Class, it is clear? Class? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now we do a little bit analysis of this transition diagram. अब अगर हम देखते हैं कि अगर मैं Q3 स्टेट में एंटर कर रहा हूं, if I am entering into the Q3 state, okay, so I can either print a 0 or I can print a 1. कैसे? अगर आप देखें मैं इस Q3 स्टेट में अगर इस Q0 स्टेट से इस B रोड के थ्रू एंटर करता हूं, B पाथ के थ्रू एंटर करता हूं, so I will be printing a 0. Is it or not? क्लियर है? लेकिन अगर मैं इस Q3 में इस Q1 स्टेट से एंटर करता हूं थ्रू दिस A रोड, यानी कि Q1 स्टेट में हूं और A रीड करके B Q3 पे आऊंगा, देन आई विल बी प्रिंटिंग ए 1. सो आप देखिए अगर मैं इस रास्ते से एंटर किया तो 0 प्रिंट किया, अगर इस रास्ते से एंटर किया तो 1 प्रिंट किया. सिमिलरली इवन फ्रॉम Q2, अगर मैं A रीड करके Q3 में आ रहा हूं देन आई विल बी प्रिंटिंग ए 0. लेकिन अगर B रीड करके भी आप देखिए मैं Q3 में ही आ रहा हूं, बट देन आई विल बी प्रिंटिंग ए 1. सिमिलरली Q3 में अगर Q3 में ही हूं और A रीड कर रहा हूं तो वापस Q3 में एंटर करूंगा एंड आई विल बी प्रिंटिंग 1. सो आप देखिए Q3 में मैं एंटर कर रहा हूं, बट किस रास्ते से एंटर कर रहा हूं इस पर डिपेंड करता है कि मैं क्या प्रिंट करूंगा, वेदर आई विल बी प्रिंटिंग ए 0 और आई विल बी प्रिंटिंग ए 1. ऑन सम पाथ्स आई कैन प्रिंट 0, ऑन सम पाथ आई कैन प्रिंट 1. सो दिस इज अ डिफरेंट मशीन देन दी मूरे मशीन. मूरे मशीन में क्या होता था, व्हेनेवर आई वाज एंटरिंग इनटू ए स्टेट, सो प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन फिक्स थी, यानी कि Q3 में अगर मैं एंटर कर रहा था तो एक ही इंस्ट्रक्शन प्रिंट हो सकती थी. जबकि यहाँ क्या है आप देख रहे हैं कि अगर मैं Q3 में एंटर कर रहा हूँ सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आई कैन प्रिंट डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम विच पाथ आई एम एंटरिंग इनटू दिस पर्टिकुलर स्टेट. इज इट क्लियर और नॉट क्लास? सो इट इज ए डिफरेंट फ्रॉम द मूरे मशीन, जहां पे मूरे मशीन में आउटपुट डिक्टेट करता था केवल स्टेट से, लेकिन मिले मशीन में आउटपुट डिक्टेट करेगा स्टेट एज वेल एज the input symbol. Okay, and second thing is, like Moore machine, this will also not represent a language, it will also not recognize a language. आप देखिए यहाँ भी कोई final state नहीं है, so like Moore machine it will also not recognize a language, rather it will also generate corresponding to each input one output. लेकिन अब इसमें output क्या होगा, आप देखिए इसमें जो output की length होगी मिले मशीन में,
the length of output. Length of output. It will be same as the length of input. Just look at, क्योंकि आप देखिए आप हमेशा अपने किसी भी स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग किससे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट स्टेट से। स्टार्ट स्टेट में एंटर करके, बट यू हैव नॉट प्रिंटेड एनीथिंग। जब आप कोई सिंबल रीड करेंगे इनपुट का, तभी आप आउटपुट प्रिंट करेंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच सिंबल इन द इनपुट यू विल बी प्रिंटिंग वन सिंबल इन द आउटपुट। जब भी आप रीड करेंगे तभी आप राइट करेंगे। इज इट ओके? सो दैट्स वाई जो आपके मूरे मशीन में हो रहा था कि जो ऑटोमेटिक स्टार्ट सिंबल आपका प्रिंट हो रहा था आउटपुट में, that problem is not here. So that's why the length of output is same as the length of input in case of this Mealy machine. So here also we have a difference from the Moore machine. Is it clear, class? Class, it is clear? Yes, sir. Okay, so this was all I wanted to discuss for today. So I will stop at this point of time, and we will continue with the discussion of the design of Mealy machines on the next lecture. So on next lecture, we will be designing certain very interesting machines which are very much useful in the circuitry design of your arithmetic logic units. Like आपके जो arithmetic logic unit या आपके जो system है, उसके अंदर complement machines होती हैं कि complement कैसे होता है, adding कैसे होती है, subtraction कैसे होता है, multiplication कैसे होता है. So we can design all such machines with the help of Mealy machines. Okay, so that we will be discussing on the next lecture. So now can I close? Okay, so I am closing, and you can leave the class now because it is the time of your next class also.